डिस्काउंट हो गए। काज ऑफ हाइपरयूरिथमिया एंड गाउट जो अभी हमने डिस्कस किए उनमें से कॉमन काजेस इंक्रीज रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, renal failure, lead toxicity, lactic acidosis, and alcohol patients. And drugs that may cause hyperuricemia, these are thiazide and loop diuretics, low dose aspirin, cyclosporin, pyrazinamide, and increased intake of the urine diet. Pathophysiology, ureates have been demonstrated in synovial tissues and failure in acute arthritis. The acute inflammation of the gout is due to ingestion of the uncoated urate crystals by monocytes and the synoviocytes. The relationship of hyperuricemia to gouty arthritis is still obscure. तो अभी कोई खास रिलेशन अभी तक मालूम नहीं, मगर इसमें ज़्यादा एसोसिएशन है कि इसमें होगा जिनमें हाइपरयूरिसीमिया होगा. Fluctuating levels of the urates, increasing or decreasing, is important factor for precipitating gouty attacks. Chronic gout is due to invasion of the articular and periarticular tissues by tophi, causing structural derangement and degeneration. Tophi can ulcerate the skin and excrete a chalky material composed of the monosodium urate crystals. Sometimes ulcerate करते हैं और उसमें white material, chalky material excrete होता है. Uric acid kidney stones are present in 5 to 10% of the gouty arthritic patients. जिनमें gouty arthritis है, इस तरह nodular formation हो रही है, tophi formation हो रही है, या history suggest of gouty arthritis है, उन patients में renal stones, uric acid renal stones 5 to 10% लोगों में हो सकते हैं. Hyperuricemia has a strong association with renal stones. Risk reaches up to 50% with the uric acid level greater than 13 milligram per deciliter. अगर ये यूरिक एसिड लेवल 13 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो 50% में चांसेस हैं कि इनको यूरिक एसिड स्टोन्स डेवलप हो. Chronic urate nephropathy is caused by deposition of monosodium urate crystals in the renal medulla and pyramid. ये टोफा है. आप देखेंगे यहाँ व्हाइट चाकी मटेरियल यहाँ से सीक्रेट हो रहा है, देखने में आ रहा है, और ये बाद में जाके ये सीक्रेट होगा. ये इसकी डायग्नोस्टिक फीचर्स में है कि ये गाउटी आर्थराइटिस है, क्योंकि रिमेटेड आर्थराइटिस वाले नोड्यूल्स में इस तरह चाकी मटेरियल नहीं निकलता. ये गाउटी टोफेशस गाउट में होगा. ज़्यादा यूरिक एसिड स्टोन्स इन द किडनीज, इस तरह बड़े स्टोन हो सकते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि किडनीज के अंदर ये स्टोन्स पड़े हैं medulla and pyramids में, it may lead to the uric acid stone formation. Pathophysiology again, purine nucleotide synthesis and degradation are regulated by a network of enzyme pathways. Purine हमारी डाइट में होता है और कभी कभार सेल टर्नओवर से रिलीज होगा. Xanthine oxidase plays an important role in catalyzing the conversion of hypoxanthine to xanthine and xanthine to uric acid. 1/3 of pool of the uric acid is derived from the dietary sources. जो हम खाना खा रहे हैं 1/3 उससे आ रहा है. 2/3 from the endogenous purine metabolism. The concentration of uric acid in the body fluid depends on the balance between endogenous synthesis and elimination by the kidneys. Kidney में round about 2/3 66% of the जो uric acid बन रहा है वो स्किप कर लेती है, और गट में 1/3% of the जो प्यूरिन्स और यूरिक एसिड बन रहा है वो स्किप हो जाता है. 90% of cases of hyperuricemia are due to the defective renal excretion of the by the kidney. So ज़्यादातर hyperuricemia के जो केसेस है वो defective renal excretion की वजह से हो रहा है. 10% are due to the increased production due to the high cell turnover. जो हाई सेल टर्नओवर के हमने रीजन कॉज डिस्कस कर लिए, माइलोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर एंड लिम्फोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर, ड्रग्स एटसेट्रा, सम डिजीज. 10% केसेस ये हैं. बाकी 90% जो है डिफेक्टिव रीनल एस्पिरेशन की वजह से. लेस देन 1% केसेस ड्यू टू द इनबोर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म. क्लिनिकल फीचर्स, acute gouty arthritis, sudden and onset, usually nocturnal. यूजुअली रात के टाइम में वो पेशेंट जो यंग एज वाले एडल्ट मेल यूजुअली, और जब स्पेशली जिनके नाइट में कभी कभार कोई डाइट ले ली, ज़्यादा प्यूरिन कंटेंट ले लिया, अल्कोहल ले लिया, और लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग इनको बहुत ज़्यादा पेन होगा. ये इनका पर्टिकुलर फीचर कभी कभी डायग्नोस्टिक फीचर होता है. पेशेंट कुछ नहीं था, रात को कहीं दावत पे गए थे, वहाँ बियर अल्कोहल का यूज़ हुआ था, डाइट
हाई प्यूरिन कंटेंट हुई थी और अचानक सडन सीवियर पेन हो सकता है, ये उसके डायग्नोसिस फीचर में है कि कल तक तो पेशेंट ठीक था, अचानक मोनो आर्टिकुलर पेन हो गया और दैट कुड बी अ सीवियर टाइप ऑफ पेन। मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द ग्रेट टो द मोस्ट ससेप्टेबल जॉइंट। यूजुअली ये मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में कॉमन इन्वॉल्व होता है और यूजुअली प्रेजेंट ये होती है कि पेन पैर के अंदर ये मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सडन ऑनसेट रात को ज़्यादा हो जाता है, जिस इस और सोलन और जॉइंट को हम पोर्टेग्रा कहते हैं। Typically in middle age men, the attack may be precipitated by excess food, alcohol, particular beer, dehydration or diuretic therapy, or acute gout may develop without apparent precipitating cause. कभी कभार पता भी नहीं होता, suddenly ये पेन हो सकता है, ये जरूर नहीं कि सिर्फ दावती हो और अल्कोहल की हिस्ट्री मिले. Sometimes you may not get a history uh, of precipitating things. This is a photograph. Red, swollen, और ये टेंडर होगा, हॉट होगा एग्जामिनेशन पे, रेडनेस नजर आ रही है, सोलन ये नजर आ रहा है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट ये कॉमनली इन्वॉल्व होता है. 50% of patients experience their first attack in the metatarsophalangeal joint. So gout या threats वाले में 50% में ये जॉइंट पहले इन्वॉल्व होगा, लेटर ऑन बाकी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं अगर ये कर दूंगा तो. And 25% of attacks joint other than grade 2 is affected. 80% of the attacks are monoarticular and typically involve the lower extremity. So 80% monoarticular होगा और typically lower extremity में होगा. बॉडी है, जिस्म में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, उन पेशेंट्स को हाइपरयूरिस में ड्रग्स देने का कोई जवाब नहीं बनता. अगर इस लेवल पे बहुत ज़्यादा लेवल पे हाइपरयूरिस में है पेशेंट को, जब हम हम अज्यूम करें कि पेशेंट रीनल स्टोन डेवलप कर लेगा या गाउट का अटैक्स होंगे, तो देन वी नीड टू लोअर द लेवल ऑफ दिस यूरिक एसिड. लेस कॉमन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड रिस्ट, fingers and elbows. Sometimes attack may develop in periarticular soft tissues, arch of foot में कभी कभार. Sometimes more than one joint may be affected during the same attack. कभी कभार ये होता है कि एक से ज़्यादा joint involvement हो, और usually ये मोनो आर्टिकुलर कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन मोनो आर्टिकुलर होती है, मगर समटाइम ऐसा हो सकता है कि और जॉइंट भी इन्वॉल्व हो साथ साथ में. अटैक सबसाइड इन 3 to 7 days. एट एन एवरेज 7 days में से अटैक सबसाइड हो जाते हैं, मगर ये 10 days तक यूजुअली ये अटैक सबसाइड हो जाते हैं. Recurrent attacks may involve more joints, usually asymmetric and persist longer. Local disformation and pruritus during recovery is characteristic. जब रिकवरी हो जाती है तो डिस्फॉर्मेशन हो जाती है, pruritus वहाँ होगा, ये characteristic features हैं. Chronic interval gout. Sometimes gout attacks are superimposed on low-grade inflammation leading to joint damage. Chronic polyarticular gout rare except in elderly people on long-standing diuretic therapy, in a renal failure, or when allopurinol is started soon after an acute attack. Allopurinol हम इसकी ट्रीटमेंट में देते हैं. अगर फौरन अटैक के साथ साथ हमने शुरू कर ली तो ये भी chronic polyarticular recurrent gout या अटैक डेवलप कर सकता है. रीनल फेलियर वालों में, ओल्ड एज वालों में, लॉन्ग स्टैंडिंग डायरेटिक थेरेपी लेने वालों में ये रिकरेंट अटैक्स के चांस हैं, जिनमें पहले यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है. तो फेशस गाउट थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करेंगे एक दूसरे में डिटेल में. यूरेट रीनल स्टोन्स बन सकते हैं इन पेशेंट्स में. चलिए, तो फेशस गाउट इन पेशेंट्स विद persistently high uric acid level may lead to smooth white deposits of sodium urate in skin and around joints, on external ears, fingers, olecranian, parapatellar bursa, under surface of hands, feet, or Achilles tendon. There will be chronic pain and sometimes acute gouty attacks. Periarticular deposits lead to halo of radio opacity and punched out bone cysts on X-ray. That we will see on the pictures, radiographic pictures of some bones. So Fisher's gout is often associated with a renal impairment. जब टोफा बन जाते हैं तो यूजुअली इन पेशेंट्स में यूरिक एसिड हाइपरयूरिसीमिया की वजह से रीनल स्टोन्स बन जाते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स बन जाते हैं, और यूजुअली इनमें पेशेंट को रीनल इम्पेयरमेंट हो सकता है, या रीनल इम्पेयरमेंट वालों को टोफा भी कॉमन हो सकता है क्योंकि रिकरेंट होगा, रीनल एक्सक्रीशन नहीं हो रही होगी, तो उनमें भी चांसेस हैं कि ये रीनल इम्पेयरमेंट में बढ़ेगा. There may be acute or chronic urine nephropathy or renal stone formation. तो टोफा
acute or chronic nephropathy कर सकता है, रीनल स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है, या रीनल किडनीज की खुद इंट्रिंसिक डिजीज की फेलियर की वजह से एक्सक्रीशन कम हो जाएगा तो हाइपरयूरेसिमिया एंड टोफा फॉर्मेशन हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं। Renal failure may lead to hyperuricemia and tophaceous gout, or tophaceous gout may lead to renal stones, and renal failure it will exacerbate the condition. ये TOFA है again, tophaceous gouty arthritis involving the fingers of hand. Chalky material you can see that's visible from the nodules. The involved joints are swollen, tender, overlying skin tense, warm, and dusky red. Patients are usually febrile, usually higher temperature. जब acute attack होगा तो patients may remain asymptomatic years after initial acute attack. Usually palliative attack हो गया जो subside हो गया 3 to 10 days में, 7 days at average ये subside हो जाते हैं. Usually 2 साल तक ये interval free attack free रहते हैं. Sometimes अगर predisposing factors हैं तो हो सकता है earlier, वरना ये पेशेंट काफी दिनों तक months तक ये asymptomatic रहते हैं. Years after recurrent attacks of monoarthritis, gout can evolve into a chronic deforming arthritis mimicking rheumatoid arthritis. Recurrent बार-बार होते रहेंगे तो sometime ये nodular formation जो mimic करेगा RA से. Again, TOFA and nodule formation, ये photograph, swollen red, again swollen and red metatarsophalangeal joint. You can see here redness and a swollen that will be tender on examination. Deforming arthritis, ये nodules formation हो गए. अब ये deforming arthritis sometimes it may resemble rheumatoid arthritis. Now you can see the punched out lesions of the bones. How to diagnose? Serum uric acid usually high. If normal, then repeat after a few weeks. Usually high मिलती है, मगर अगर ये नॉर्मल है या लो है तो अटैक के बाद पॉसिबिलिटी है कि आपको नॉर्मल मिले, तो हम फ्यू वीक्स के बाद फिर से रिपीट करेंगे. Normal uric acid level doesn't exclude gout. White cell count is usually high in acute attack. Joint failure examination, that's the diagnosis. Sodium urate crystals from joint fluid or material aspirated from the tophus establish the diagnosis. ये हम जब joint fluid aspirate करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं तो क्या नजर आता है. Crystals extracellular inside neutrophils are needle-like होंगे crystals and negatively birefringent when examined by the polarized light microscopy. ये needle-like crystals आप देख रहे हैं, ये needle-like crystals हैं. जब हम जॉइंट फ्लूइड एस्पायर्ट करेंगे और अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, ये नेगेटिवली बायरफ्रेंजेंट होंगे, needle like again crystals और क्लियरली विजिबल. ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स हैं. एक्सरे फाइंडिंग्स में भी नॉर्मल इन अर्ली डिजीज. अगर पेशेंट को पहले 1-2 बार अटैक हुआ है तो पॉसिबल है कि इसके बोन के भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई हो और आपको एक्सरे नॉर्मल मिले. Punch out erosions with an overhanging rim of cortical bone, red bite appearance. जैसे चूहे ने काट लिया हो, इस तरह का अपीयरेंस आपको मिल सकता है पर्टिकुलर जॉइंट में जहाँ ये रिकरेंट इन्वॉल्वमेंट हो रही हो. When above findings are adjacent to soft tissue tophus that is diagnostic of gout, serum urea and creatinine level to check renal function. क्योंकि ये renal failure होगा तो चांसेस बढ़ेंगे. तो हम पेशेंट के renal function देख लेते हैं क्योंकि हमें अगर यूरिक एसिड भी करवाना होता है तो हमें जब ड्रग देने से पहले रीनल फंक्शन देखना पड़ेगा कि किस डोज पे हम पेशेंट को ये ट्रीटमेंट शुरू करें. ऐसा ना हो कि पहले रीनल फंक्शन हो, फेलियर में हो पेशेंट और हम डोज को बढ़ाते जाएं, दैट मे बी वेरी डेंजरस. यूनिवर्सिटी से फोन आ रहा है. हेलो. जी जी. ठीक ठीक. ठीक है ठीक है. ठीक है ठीक.
सॉरी फॉर इंटरप्शन। यूनिवर्सिटी से फ़ोन था, क्योंकि मैं लेके अपने घर से डिलीवर कर रहा हूँ। कि आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है और आपकी अटेंडेंस सिस्टम सारा उनके पास है, मेरे पास नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं वो काउंट कर रहे हैं, आखिर तक ये जो स्टूडेंट्स की जो साइन इन कर रहे हैं, उनके अटेंडेंस आपके रोल नंबर के साथ उनके पास है और वही अटेंडेंस आपके एग्ज़ाम में और डायरेक्ट एकेडमिक्स के पास जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चन आपके अब बाद में लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता दें, बाकी इस मैसेजेस आपके क्वेश्चन से हम बाद में लेंगे। चलिए, मैं यूनिवर्सिटी वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चैट ऑप्शन खोल दें। अगर कोई मसला हो तो हम स्टूडेंट से यहाँ चैट के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। आप चैट का ऑप्शन प्लीज़ इनको खोल दें। हमें भी समझने में नहीं आ रहा और इसको फिर डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से इनसे क्वेश्चन करेंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा अनम्यूट करेंगे तो। आप चैट ऑप्शन प्लीज़ यूनिवर्सिटी वाले अगर सुन रहे हैं तो ये खोल दें। चैट रिलेटेड टॉपिक हो, आवाज़ नहीं आ रही हो या क्वेश्चन आखिर में करेंगे। आप चैट अभी इसमें क्वेश्चन ना करें, जब हम क्वेश्चन आंसर में आएँगे तो आप चैट कर लीजिएगा और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम आपको अनम्यूट भी करेंगे। बाकी और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो उसके लिए आप मुझे चैट करें तो मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूँ। मैं मैसेज कर लेता हूँ, ये चैट ऑप्शन खोल लें। ये एक्स-रे, ये नॉर्मल एक्स-रे इस फुट का। आप देखेंगे ये नॉर्मल स्पेस है, जॉइंट स्पेस है। यहाँ आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रक्शन हो रही है इस जॉइंट की। अगेन मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट है, ग्रेड टो का, और इसको पंचेड आउट लियंस हम दूसरी पिक्चर में देखेंगे। यहाँ देखें, जिस तरह किसी ने काट दिया हो, रेड बाइट टाइप ऑफ अपीयरेंस। ये एक्स-रे में जो जिनको क्रॉनिक बार-बार होता रहेगा, इनमें पॉसिबिलिटी है कि इनको बार-बार इस तरह पंचेड आउट लीजन्स हो जाएँ, जिस तरह किसी ने चूहे ने काटा हो। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मेटाटार्सोफिलेंजियल जॉइंट में मिले, जहाँ भी ये बार-बार हो रहा हो, बहुत सारे जॉइंट्स के साथ मिल सकता है। और उसके साथ-साथ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आपको मिलेगी एक्स-रेज़ में। इट्स क्लियरली विजिबल है। डिफरेंशियल्स, हेलो, चैट के हाँ भाई, ठीक है ना? ठीक है, चैट थैंक थैंक यू भैया। हाँ, चैट में कोई प्रॉब्लम हो टेक्निकल तो आप उसमें आप लिख लें। एवरीवन टू हाय, एवरीवन को आप हाय ना करें। अ, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू। डिफरेंशियल्स, जब हम पहले जैसे इस तरह के पेशेंट देखते हैं तो हमें हमें हमारे ज़हन में कुछ डिज़ीज़ आ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम पहले फर्स्ट गो में कहें कि इसको गाउट या आर्थराइटिस है, बाकी इधर-उधर के बाकी विंडोज़ शट डाउन कर दें। पहले देखेंगे कहीं कोई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेप्टिक आर्थराइटिस, सेल्युलाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सूडो गाउट, रिएक्टिव आर्थराइटिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर एंड अदर क्रिस्टलाइन आर्थरोपैथीज़ हो सकती हैं। तो हमें हिस्ट्री पे, एग्जामिनेशन पे हमें काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। Chronic perforations gout में rheumatoid arthritis, pseudo gout, seronegative spondyloarthropathies with erosive osteoarthritis इसके डिफरेंशियल्स में आएगा। मैनेजमेंट, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट नीड नॉट टू बी ट्रीटेड। ये जनरल कार्डियक वाले यूजुअली हाइपरयूरेसिमिया नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, उनको हम यूजुअली ट्रीट नहीं करते। हाँ, अगर until renal calculi, uric acid वाले, टोफा एंड आर्थराइटिस बिकमिंग अपीरेंट, बार-बार आर्थराइटिस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है इन पेशेंट्स में, बट सम फिजिशियंस ट्रीट इफ द यूरिक एसिड लेवल इज मोर देन 12 मिलीग्राम पर डेसीलिटर एंड देयर इज द रिस्क ऑफ द नेफ्रोलिथोसिस।
क्योंकि यहाँ तक इस लेवल पे आ जाएगा तो नेफ्रोलिथस होगा, स्टोन्स बनेंगे, तो उन पेशेंट में फिजिशियंस ट्रीट करते हैं, वरना यूजुअली जो यूरिक एसिड 7 7 8 हो तो हम ट्रीट नहीं करते। एक्यूट अटैक्स में एनसेड्स पहले तो टू किल द पेन नेप्रोक्सन दे दें, एंडोमेथासिन दे दें, डाइक्लोफेनेक दे दें, पहले पेशेंट का पेन रिलीव करें और एनसेड्स विल वर्क वेल। देन एक्यूट अटैक में कोल्चिसिन हम दे सकते हैं 1.2 मिलीग्राम लोडिंग डोज, then 0.6 milligram after 1 hour, then 0.6 milligram once a day or twice a day। ये कोचिसिन हम एक्यूट अटैक में दे सकते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड्स, यस, मिथाइलप्रेडनिसोलोन 40 मिलीग्राम ओडी आईवी फॉर्म में देंगे। अगर मोनो आर्टिकुलर है या एक या दो जॉइंट्स वाले हैं, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एनसेड से रिलीफ नहीं मिल रहा पेशेंट को, तो हम आईवी फॉर्म में मिथाइलप्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, या ओरल प्रेडनिसोलोन 40 to 60 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं, या इंट्रा आर्टिकुलर ट्राइएमसिनोलोन 10 to 40 मिलीग्राम, ये जॉइंट के अंदर ट्राइएमसिनोलोन स्टेरॉइड दे सकते हैं, या आईवी मिथाइलप्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। ये एक्यूट अटैक में जब सीवियर अटैक हो, एनसेड्स काम नहीं करें तो हम ये थोड़ी देर के लिए, दिनों के लिए दे सकते हैं। इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स एनाकिनिumab और रालोनार्सेप्ट ये भी दिए जा सकते हैं। बिटवीन द अटैक्स, अब अटैक तो अबाउट हो गया, ठीक हो गया, बेहतर हो गया, अब क्या करें? उन पेशेंट्स के लिए डाइट, पहले पेशेंट की डाइट हम एडवाइस करते हैं कि वो डाइट किस तरह की ले रहा है, कौन सी डाइट ले रहा है, और कौन सी डाइट में प्यूरिन ज़्यादा कंटेंट होगा, जिसको हम एडवाइस करें कि आप ये अवॉइड करें। इस तरह की डाइट में पॉसिबिलिटी कि आपकी अटैक्स, रिकरेंट अटैक्स ना हो। अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल, स्पेशली बियर, प्यूरिन कंटेनिंग फूड्स अवॉइड करें, मीट, सी फूड्स, yeast, beans, lentils, peas, spinach, cauliflower, mushrooms, oatmeal and asparagus। Honestly speaking, it's very difficult for a patient to follow this dietary advice। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने मीट भी बंद कर दिया, सी फूड बंद कर दिया, लेंटिल्स, बीन्स, पीज, ये सारे बंद कर दिए, तो डेयरी प्रोडक्ट्स आप या जहाँ यहाँ जाके रहते हैं और कुछ और प्रोडक्ट्स, तो ये मुश्किल है, मगर जितना मैक्सिमम पेशेंट कर सकता है अवॉइड, तो वो अवॉइड करे, क्योंकि इनमें प्यूरिन ज़्यादा होगा है, और ज़्यादा प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा और एक्यूट गाउट या अटैक्स रिकरेंट होते रहेंगे। तो अवॉइड जितना मुमकिन हो सके आप अवॉइड करें ये फूड्स जिनमें प्यूरिन ज़्यादा होगा। रिडक्शन इन टोटल कैलोरी एंड कोलेस्ट्रॉल इंटेक, टोटल कैलोरी एंड कोलेस्ट्रॉल इंटेक को कम करवाएं, और हाइपरयूरेसिमिक मेडिकेशंस जो हैं उनको आप कम से कम रखें। थायराइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, लो डोज एस्पिरिन, नियासिन, ये हाइपरयूरेसिमिया करवाएंगी, उनमें आप अवॉइड करें। कोचिसिन प्रोफाइलैक्सिस अभी हमने डिस्कस किया 0.6 मिलीग्राम once a day or twice a day during acute attack and prophylactic when urate lowering drugs are used because of they may precipitate acute attacks। जब हम यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स देंगे तो हम प्रोफाइलैक्सिस कोचिसिन देंगे, क्योंकि ये ड्रग्स जो दे रहे हैं यूरिक एसिड लोअर करने वाली, वो acute अटैक करवा सकती हैं, तो उसके लिए कोचिसिन पहले दे देते हैं। हमारा जो गोल होता है कि रिड्यूस द यूरिक एसिड लेवल बिलो 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स है। इसके अलावा एक और भी ग्रुप है, 2-3 ग्रुप है जो हम डिस्कस करेंगे। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में एलोपेरिनोल एंड फीपरजोस्टेट ये कॉमनली यूज होती है। कॉमन नेम हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़ाइलोरेक के नाम से एलोपेरिनोल अवेलेबल है, फीपरजोस्टेट के नंबर ऑफ ड्रग्स ट्रेड नेम्स अवेलेबल है जो हम दे देते हैं। They are considered as first-line therapy, only used when attacks are severe and frequent, and in renal failure and tophaceous gout। पेशेंट renal failure में acute attack हो रहे हैं बार-बार, tophaceous gout है तो हम देंगे। When NSAIDs and colchicine are not tolerated, जब NSAIDs और colchicine tolerate पेशेंट ये न कर सके तो हम ये ड्रग्स शुरू करते हैं, यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स। और उसकी जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि when to start this type of the medication should never be started within a month of an acute gout attack। acute attack हो गया, फौरन आप ये ड्रग्स नहीं देंगे, ये प्रिसिपिटेट कर लेंगे। and always use the under cover of the NSAIDs or colchicine for first 2 to 4 weeks। पहले 1 महीने तक ये हाइपर यूरेसिमिया को लोअरिंग ड्रग्स नहीं देंगे, और जब देंगे तो एनसेड्स एंड कोल्चिसिन पहले 1-2 हफ्ते, 2 से 4 हफ्ते साथ कंटिन्यू करेंगे, और जब ड्रग हम शुरू कर देंगे
यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स, तो उसके साथ साथ अगेन एनसेड्स और कोचिसिन 1 महीने तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम ये डिसकंटिन्यू करेंगे कोचिसिन एंड एनसेड्स, वरना ये एक्यूट अटैक फिर से प्रिसिपिटेट कर लेंगी। इसलिए हाइपर यूरिसीमिया जो यूरिसीमिया कम करने वाले ड्रग्स हैं वो हम एक्यूट अटैक में नहीं देंगे, और उनके साथ ये हम 1 महीने तक कोचिसिन एनसेड्स शुरू करेंगे। Lower uric acid level by blocking these drugs by blocking the final enzymatic step in the production of uric acid is xanthine oxidase inhibitors हैं, जो हमने डिस्कस किया कि आर्कोजेंथिन जेंथिन में जेंथिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, तो ये इसको ब्लॉक कर देगी। फीबक्सोस्टेट ये रीनल फेलियर में इम्पेयरमेंट में कुछ ज़्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू एलिप्रिनॉल। एलिप्रिनॉल का हमको डोज लो रखना पड़ेगा अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है तो अगर इसकी प्रॉब्लम ये होता है कभी कभार ये कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ा देती है, तो एलोप्रिनॉल हम प्रेफर करते हैं। एलोप्रिनॉल की साइड पे जो कॉमन लाइफ थ्रेटनिंग है वो कभी कभार सीवियर हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है, और ये बहुत ड्रग्स फीबक्सोस्टेटिन एंड एलोप्रिनॉल साथ नहीं देते। यूरिकोसूरिक ड्रग्स जो रीनल एक्सक्रीशन करवाती है, वो पहले वाली थी ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ये फॉर्मेशन कम करवाएंगे यूरिक एसिड की, और दूसरा ग्रुप यूरिकोसूरिक ड्रग्स ये रीनल एक्सक्रीशन करवाएंगी किडनी से, जैसे प्रोबेंसेड डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल बाय ब्लॉकिंग ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड यूरिक क्रिस्टल्स, इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। और लेसिन्यूरॉड 200 मिलीग्राम वंस अ डे हम देंगे। Probenecid and lesinurad contraindicated in creatine clearance less than 45 to 50 ml per minute। creatine clearance अगर 40-50 से कम होगा तो ये contraindicated नहीं देंगे। और वो पेशेंट जो यूरिक एसिड मोर देन 800 मिलीग्राम पर डे 24 यूरिन कलेक्ट करेंगे, अगर यूरिक एसिड 24 यूरिनरी कलेक्शन में मोर देन 800 मिलीग्राम पर डे है तो उन पेशेंट में नहीं देंगे, क्योंकि ये पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे हैं किडनी से, और ज़्यादा आप बढ़ाएं देंगे तो हाइपर यूरिसीमिया किडनी इतना लोड अफोर्ड नहीं कर सकेंगी, और ये हाइपर यूरिसीमिया ज़्यादा किडनी में अंदर प्रिसिपिटेट करेगा, यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर 800 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा पहले ही पेशेंट एक्सक्रीट कर रहा है तो ये यूरिकोसूरिक ड्रग्स नहीं देंगे, और पेशेंट को एडवाइस करते हैं टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। यूरिकेज और ड्रग्स जो हम देते हैं, इसके अलावा क्रॉनिक टोफिशियस गाउट यूरिक डिस्टर्बेंस आफ्टर ट्रीटमेंट एंड गाउट इन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स यूजुअली इंट्राआर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और स्टेरॉइड्स इनको देनी पड़ते हैं। एलोप्रिनॉल एंड फीबक्सोस्टेट में बी गिवन टू दीस पेशेंट्स, और जिन पेशेंट्स में जो रीनल ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, एजाथियोप्रिन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स है, वो उन पेशेंट में हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो इनहिबिट कर लेंगे इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म। 2-3 स्लाइड्स सूडो गाउट, अगेन ये भी क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी है। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन आर्थ्रोपैथी, सीपीबीडी इसको आर्थ्रोपैथी कहते हैं। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन इन द फाइबर कार्टिलेज इन हाइलाइन कार्टिलेज, इसमें कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस नजर आएगा एक्सरे पे। acute crystal induced arthropathy pseudo gout, a degenerative arthropathy and a chronic inflammatory polyarthritis के types हैं, can be asymptomatic detected incidental as a chondrocalcinosis on radiograph। ये 4-5 स्लाइड्स हैं। etiology unknown है, can be secondary to elevated levels of the calcium or inorganic phosphate। major risk factors are CPPD are hyperparathyroid, familial hypocalciuric hypercalcemia, hemochromatosis and hypomagnesemia। प्रीडोमिनेंट एल्डरली पेशेंट में होगा, पीक एज 65-75 ईयर के बाद होगा। फीमेल प्रीडोमिनेंस फीमेल टू मेल रेशियो 2:7 से लेकर 1 तक है, कभी कभी फीमेल में कुछ रेसेस में 2 से 7% तक इन्वॉल्व होती है एज कंपेयर टू 7 एज कंपेयर टू मेल 1 रेशियो। Prevalence of chondrocalcinosis is 5-8% in the general population। CPPD associated arthritis is the third most common cause of the inflammatory arthritis। इसके 2 डिजीज के जो प्रोसेस है, इंक्रीज प्रेजेंस ऑफ द टाइनी सीपीपीडी क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स, shedding of crystals into joint precipitate acute synovitis and that resembles gout and body reaction to these crystals। The most common cause of the acute monoarthritis in elderly ओल्ड एज वाले में 760 ईयर के बाद अगर हो रहा है तो यूजुअली ये सूडो गाउट होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड बाय कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस of the affected joint and radiographs।
मोस्ट कॉमन साइड इसमें लार्ज जॉइंट्स होगा, नी रिस्ट कॉमन इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद शोल्डर एंकल एंड एल्बो हो सकता है। टेक्निकल फैक्टर्स डायलिटिक इंटरकरेंट इलनेस एंड सम टाइम आफ्टर सर्जरी, ये हो सकता है। acute attacks resemble gout, rapid developing a severe pain, stiffness and swelling within 6 to 24 hours, overlying erythema, ये कोंड्रोकैल्सिनोसिस। यहाँ डिस्ट्रक्टेड जॉइंट्स नहीं है, बोन डिस्ट्रक्ट नहीं है, मगर कोंड्रोकैल्सिनोसिस एक्सरेज पे कभी कोएंसिनो फाइंडिंग में हमें इस तरह की कोंड्रोकैल्सिनोटिक पिक्चर्स आ जाती हैं। यहाँ बोन जो अंडरलाइंग बोन्स है वो नॉर्मल है। कोंड्रोकैल्सिनोसिस अगेन यू कैन सी दिस पिक्चर। इसमें डायग्नोस कैसे करेंगे? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट एस्पारेट डायग्नोस्टिक टू लुक आउट। ये रोम्बॉइड टाइप क्रिस्टल्स होते हैं और वीकली पॉजिटिव बायफ्रेंजेंट क्रिस्टल्स होंगे। रोम्बॉइड टाइप एंड वीकली वो गाउट वाले नीडल शेप थे और रेडियोग्राफ में कोंड्रोकैल्सिनोसिस हमें नजर आएगा। जो भी आपने देखा ये रोम्बॉइड टाइप क्रिस्टल्स है, यहाँ नीडल शेप क्रिस्टल्स नहीं है जो गाउट में थे, यहाँ रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स हैं। यहाँ कोंड्रोकैल्सिनोसिस यू कैन सी द एरोज आर शोइंग। No specific treatment for this disease, no specific, only aspiration of the fluid reduces the pain chromatically, intra-articular steroidation may be given, and NSAIDs colchicine may be benefit and early immobilization. Thank you. Now I'm coming to the your question answer and we'll stop the recording and